हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 12th क्लास के लिए अपने पास में यूनिट फर्स्ट बायोलॉजी की यूनिट फर्स्ट में पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यूनिट इस यूनिट्स के अंदर इंक्लूड किया अपन ने चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। स्टार्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट थिंग्स, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? Reproductions means continuity of race. Every living organism produce similar kinds of organism. रिप्रोडक्शन का ऑर्गेनिज्म अपने ही समान संतति को उत्पन्न करता है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म passes through definite and regular stage of life cycle. It take birth, grow, maturation, reproduce its own kinds, become old and finally die. The period from birth to death of organism is called life span. हर एक ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पेन पीरियड होता है। वो लाइफ स्पेन पीरियड क्या है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल मे फ्लाई 1 डे लाइफ स्पेन पीरियड, सिकाडा 1 डे, dog 20 to 30 years lifespan, banyan tree 2000 years, and square 3000 to 4000 years. Reproduction, it is defined as a biological process in which an organism give rise to young ones or offspring similar to itself. Types of reproduction, there are two types of reproductions: asexual reproduction and sexual reproduction. Now first, asexual reproduction. Asexual reproduction, the production of offspring by a single parents without the formation and fusion of gametes is called asexual reproduction. Asexual reproduction is also called agamogenesis. Asexual reproduction is also called agamogenesis. Now, characteristics of asexual reproduction. In this reproduction involved only single parents, first characteristic features. Second, gametes are not formed. Gametes are not formed. What do you mean by gametes? Gametes, it is the unit through which reproductive germ produce. Now, second characteristic features, no fertilization. In asexual reproduction,
there is no fertilization. What do you mean by fertilization? The fusion of gametes is called fertilization. Fourth characteristic features, there is only mitotic cell division occurs in them. In asexual reproduction, mitosis cell division occurs in them. What do you mean by cell division? Dividing of cell is called cell division. There are two types of cell division, mitosis and meiosis. What do you mean by mitosis cell division? One cells produce two cells, but there is no change in number of chromosomes in daughter cell. In meiosis cell division, one cells produce four cells, but number of chromosome is half in daughter cell is called meiosis cell division. Generally, asexual reproduction के अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है. The daughter organisms are genetically identical to the parents. Fifth characters में genetically ऑफस्प्रिंग जो है सिमिलर होगी किसके? पेरेंट्स के. क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन नहीं आ रहा है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर वेरिएशन देखने को मिलते हैं हमको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में वेरिएशन नहीं देखने को मिलता. वेरिएशन क्या है? वेरिएशन डिफरेंशिएशन बिटवीन द अमंग द ऑर्गेनिजम्स. मल्टीप्लिकेशन ऑकर्स रैपिडली. तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हुए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के? सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व इन देम फर्स्ट. Single parents involved in them. Gametes are not formed. No fertilization. No fertilization. Only mitosis cell division occurs in them. Daughter organisms genetically similar. Organism genetically similar. तो अपन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे अपन ने. अब अपन देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या इसी को हम बोल सकते हैं मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसके डिफरेंट मेथड हैं. फर्स्ट मेथड है फिशन. फिशंस मीन्स होता है डिवाइडिंग into two equal parts. इस पे फिशंस के भी अलग अलग टाइप्स हो गए. फिर बाइनरी फिशन समझ गए, ऑर्गेनिज्म इक्वली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फॉर एग्जांपल अमीबा. ये आपको एग्जांपल्स इसके सारे याद रखना है, क्योंकि यही नीट वगैरह में भी पूछे जाते हैं. ट्रांसवर्स बाइनरी फिशंस, एग्जांपल पैरामीशियम. Longitudinal binary fission, example Euglena. Multiple fissions, examples amoeba, plasmodium. प्लाज्मोडियम भी कौन? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स डिसीज होती हैं. यही प्लाज्मोडियम की जो स्पोरोफाइट स्टेज है उसके अंदर जो है मल्टीपल फिशंस की प्रोसेस होती है. प्लाज्मोटोमी, एग्जाम्पल ओपेलाइना है. बडिंग, पेरेंट्स बॉडी से कोई भी आउटग्रोथ निकले उसको हम बर्ड्स बोलते हैं, और उस बर्ड्स ग्रो होती हैं वो पेरेंट्स के सिमिलर होती हैं, इसलिए हम उसको
प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। अब बडिंग भी दो टाइप का हो जाता है, एक्सोजीनस बडिंग और इंडोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग मतलब व्हेनेवर बड्स अराइजेस फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। ये हमको देखने को मिलता है साइकॉन के अंदर, हाइड्रा के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी बडिंग होती है इंडोजीनस बडिंग, इसी को हम जिम्यूल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ये हमको देखने को मिलती है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला ये फ्रेश वाटर स्पंज है, उसके अंदर हमको देखने को मिलती हैं। अब हम इसको आगे बुक से देखते हैं और बुक से इसको समझ लेते हैं पूरी मेथड को, एक एक को, ठीक है। फिशन क्या है, बाइनरी फिशंस क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल फिशन क्या है, प्लाज्मोटोमी क्या है, बडिंग क्या है, इसका एक्सप्लेन हम बुक्स पे करते हैं, ठीक है। Fissions mean dividing of organism into two equal parts. There are different types of fissions. First, binary fission. Binary fissions में होता है क्या है कि जैसे हम ये एग्जांपल देखें अमीबा जो में के अंदर न्यूक्लियस का एनलार्जमेंट होने लग जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स होने लग जाएंगे टू पार्ट्स के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस इलोंगेटेड होगा, जैसे जैसे इलोंगेटेड होगा या अपनी सेल डिवीजन के स्टेज से पास ऑन होगा। फर्स्ट फेज में इंटरफेज है, प्रोफेज है, मेटाफेज है। सेल्स की वॉल इन्वेजिनेटेड होंगे और न्यूक्लियस डिवाइडेड हो जाएगा इनटू टू पार्ट्स। ईच पार्ट्स फॉर्म न्यू डॉटर ऑर्गेनिजम्स, सो इट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशंस मीन्स डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। सेकंड थिंग्स हम फिशन देखें, लॉन्जिट्यूडिनल फिशंस। लॉन्जिट्यूडिनल फिशंस हमको देखने को मिलता है किसके अंदर, यूग्लिना के अंदर, ठीक है। यह फ्लैजिलेटेड एनिमल्स है, ठीक है, लीफ लाइक एनिमल्स है। यूग्लिना को हम जानते हैं इट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इसमें भी न्यूक्लियस इलोंगेटेड होगा, फ्लैजिला डिवाइड्स होने लग जाएंगे, सेंट्रली लॉन्जिट्यूडिनल ग्रू डेवलप होने लग जाएगा, ठीक है। दिस ग्रू रीचेस अप टू द टिप पोर्शंस ऑफ द यूग्लिना एंड इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यूग्लिना दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली पैरामीशियम्स के अंदर हमको ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। पैरामीशियम प्रोटोजोन्स हैं, स्लीपर लाइक एनिमल्स हैं, बाई न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म है, एक में मेगा न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। दीज न्यूक्लियस इलोंगेटेड होंगे, सेंट्रली इसकी वॉल इन्वेजिनेटेड होने लग जाएंगी एंड दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड्स हो जाएगा। साइमल्टेनियसली साइटोप्लाज्म और मेगा न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइडेड होकर एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये एक सिमिलर होंगे क्लोन के समान। यहाँ पर हम अभी तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स को देखा है हमने, ये सारे डिवाइड्स होकर इक्वल पार्ट्स में बने, इक्वल पार्ट्स के सिमिलर हुए, जेनेटिकली सेम हुए ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसीलिए इनको हम क्लोन कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी मल्टीपल फिशन। ये हमको मल्टीपल फिशंस नेक्स्ट मेथड होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसके अंदर ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर, ये जब कब होता है फिशन, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। अमीबा जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और तीन प्रोटेक्टिव लेयर इसके अराउंड एक्यूमुलेट होने लग जाती है, इसकी वॉल्स कुछ सब्सटेंस सिक्रेट करती हैं और एक सिस्ट बन जाता है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस मल्टीप्लिकेशन होगा और डिवाइड्स होगा मैनी न्यूक्लियाई के अंदर। ईच न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। Whenever favorable condition occurs, then its wall break and many small organism amoeba comes outside. Budding, the outgrowth originate from outside of the body of an organism is called budding. There are two types of budding: exogenous budding एंड इंडोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग हम देख सकते हैं हाइड्रा के अंदर, पेरेंट्स बॉडी है, पेरेंट्स बॉडी से एक आउटग्रोथ ओरिजिनेट्स हो रही हैं। ये आउटग्रोथ इसलिए ओरिजिनेट हो रहे हैं कि पेरेंट्स बॉडी के अंदर एबंडेंट अमाउंट्स के अंदर फूड्स हैं, ठीक है, और फूड्स के कारण ये बॉडी इसकी आउटग्रोथ ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है। जैसे जैसे ये बर्ड एनलार्ज होती जाएंगी
और इक्वली साइज में हो जाएंगे पेरेंट्स के, तब ये डीअटैच हो जाएंगे। ये हमको देखने को मिलता है हाइड्रा के अंदर। इसी तरीके से हाइड्रा कौन से फाइलम का मेंबर है? सिलेंट्रेटा, इसी को हम निडेरियन भी बोलते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि साइकॉन के अंदर, ठीक है, यहाँ पर ये साइकॉन कौन से फाइलम का मेंबर है? ओरीफेरा का, ठीक है। बॉडी इसकी परफोरेटेड होती हैं। इनसे भी फिर बर्ड निकलती हैं और यह बर्ड डीअटैच होती है पेरेंट से और इंडिपेंडेंटली ग्रो करती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बर्डिंग कहते हैं। लेकिन कौन सी बर्डिंग है? यह एक्सोजीनस बर्डिंग है। एक्सोजीनस बर्डिंग का और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यीस्ट के अंदर। यीस्ट के अंदर देखिए आप कि यहाँ पर इसके रेगुलर सेल्स बन रहा है और एक बर्ड ओरिजिनेट हो रही है। न्यूक्लियस डिवाइड होकर बर्ड्स के अंदर पास ऑन हो रहा है, पेरेंट्स बॉडी के अंदर पास ऑन हो रहा है। धीरे धीरे ये बर्ड सेपरेट हो जाएंगे। ऐसे ये सिंगल बर्ड भी हो सकती हैं और चेन लाइक बर्ड भी हो सकती हैं, ठीक है। एक चेन बन जाए बर्डिंग की तो ये पूरी बर्ड्स भी हो सकती हैं। अब दूसरी बर्ड होती है इंडोजीनस बर्ड, ठीक है। इंडोजीनस बर्ड हमको देखने को मिलती है किसके अंदर? स्पॉन्जिला के अंदर। स्पॉन्जिला ये फ्रेश वाटर स्पंज है। इसी को हम जिम्यूल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि बर्ड डेवलप इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बर्ड्स कहाँ हो रही है? ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो रही हैं, इसलिए हम इनको इंडोजीनस बर्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होगा? इनके अंदर आप देखिए कि सबसे इंटरनली स्मॉल सेल्स बनते हैं, ठीक है। और ये ग्रुप ऑफ सेल्स जिनको हम आर्चियोसाइट सेल्स बोलते हैं, या हम इनको जिम्यूल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जिम्यूल्स बोल सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा भी है इसको कि जिम्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जिम्यूल्स प्रोटेक्टेड होता है किससे? स्पिक्यूल से। यह स्पिक्यूल्स होते हैं, इनसे प्रोटेक्टेड रहेगा। जिम्यूल्स और स्पिक्यूल्स के बीच में एक अपर्चर डेवलप होता है जिसको हम माइक्रोपाइल्स बोलते हैं। जैसे जैसे कंडीशन फेवरेबल आती जाएंगी या स्पिक्यूल्स की वॉल ब्रेकअप होंगी और जिम्यूल्स कम्स होंगे आउटसाइड और फिर ग्रो करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम जिम्यूल फॉर्मेशन देख सकते हैं। यही इंडोजीनस बर्डिंग होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट मेथड होती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से नाम से ही लगता है कि बॉडी डिवाइडेड इनटू मैनी फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट डेवलप न्यू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सच प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ये हमको देखने को मिलती है किसके अंदर? स्पॉन्जेस के अंदर, ओरीफेरा का मेंबर है। इकाइनोडेरियन, सिनेडेरियन के अंदर, सिलेंट्रेट्स के अंदर देखने को मिलती हैं और इकाइनोडर्मेटा या स्टारफिश के अंदर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम प्लेनेरिया नाम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। इसके अंदर ये फ्लैट वार्म होते हैं, जो प्लेटियल मिंथिस का मेंबर है ना। इसकी बॉडी कई पार्ट्स में डिवाइड होती जा रही है और एक एक पार्ट्स ये क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है और न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रहा है। तो यह मेथड भी फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू मेनी पीसेस, ईच पीस डेवलप न्यू ऑर्गेनिज्म, सच प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। अब हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और भी हो सकता है। किनके थ्रू हो सकता है? जू स्पोर्स फॉर्मेशंस के थ्रू। ये हम लोअर अल्गी वगैरह के अंदर देखते हैं, जो यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास। कौन सी होती हैं? क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास जो होती हैं ये यूनिसेलुलर अल्गी होती हैं। इनके अंदर जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जू स्पोर्स मतलब बायफ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स वाटर के थ्रू मूवमेंट्स करते हैं और किसी सरफेस पर अटैच होकर यह न्यू अल्गी का फॉर्मेशन करते हैं अपने फ्लैजेला की मदद से। इसको हम जू स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की और मेथड भी देखने को हमको मिलती है। कोनिडिया फॉर्मेशन, स्पेरिकल स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं ऑन द टिप ऑफ द हाइपा ऑफ द फंगस, ठीक है। इनको हम बोलते हैं कोनिडिया। ईच कोनिडिया सेपरेट एंड डेवलप द न्यू हाइपा। हाइपा मीन्स क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ फंगल पार्ट्स, इट इज अ पार्ट ऑफ फंगल पार्ट, ठीक है।